So the measurement of the ability or the measurement of the property of a substance to conduct heat energy, that is called the thermal conductivity. The amount of heat which can be conducted across a slab or across a medium, that is directly inversely proportional to the length of the medium, okay, and directly proportional to the cross-sectional area, directly proportional to the temperature difference, directly proportional to the time. माइक ऑफ कर ले काइंडली, किसी का माइक ऑन है. And also directly proportional to the ability of the material to conduct the heat energy. ठीक है, for any medium, the amount of heat which will be conducted, that is directly proportional to the area, cross-sectional area, change in temperature. माइक ऑन ऑफ कर लें. मुराद का आना है सर, मुराद. Time and inversely proportional to the length of the medium. Yeah, the heat which will be conducted through a slab is equal to the nature of the material, which we call the thermal conductivity. That is the ability, that is the property, that is the characteristic of a material which can conduct heat. Okay, the cross-sectional area, the change in temperature between the two ends divided by length. Okay, and the time कि कितने time के लिए आप heat energy provide कर रहे हैं. So then the heat divided by time, that is called the heat rate. Okay, K mean conductivity, area, change in temperature divided by length. So then we called it the heat rate. ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं just that the temperature is decreasing at this point due to the transfer of heat from one end into another end. So this is called the Fourier's law of heat conduction. Okay, and here these are the different values which are the coefficients of the thermal conductivity of the different materials. Okay, you can see for concrete, here concrete, if it is this one 1:4, so its conductivity is 0.037 BTU per hour per degree Fahrenheit per feet length in per square cross sectional area, per square feet of cross sectional area. ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है कि हीट किस तरह ट्रांसफर होता है. सेकंड मैकेनिज्म जो है, दैट इज द कन्वेक्शन, which is the transfer of heat by transport of heated fluid. See, in conduction, the heat is transferred due to the vibration of the atom. ठीक है, एंड कन्वेक्शन में जो है पूरी मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है, मोस्टली जो गैसियस और लिक्विड में होते हैं. सपोज इफ यू हैव अ लिक्विड एंड यू आर प्रोवाइडिंग द हीट, सो जो नियर बाई मॉलिक्यूल हैं वो हीट अप हो जाएंगे, लेस डेंस हो जाएंगे, the kinetic energy will be increased, the internal energy will be increased, और ये low energy area में आएंगे. और यहाँ पे जो the molecule which have low energy, which have low kinetic energy, वो dense ज्यादा होते हैं तो नीचे जाएंगे. ठीक है, so the heat which is transferred due to the transport of the heated fluid, that is called the convection. ठीक है, mostly we have two types of the convection. One is the natural convection or free convection, which is caused by the difference in buoyancy. Okay, buoyancy, that is the we can say that the upward force exerted by a fluid against the gravity. ठीक है, suppose if you have a fluid in a container और यहाँ पे आप इसको heat provide कर रहे हैं, तो suppose a molecule जो है वो heat up हो जाए, वो energy gain कर ले, heat energy gain कर लें, so ऊपर आएगा against the gravity. ठीक है, so that is the difference in buoyancy. Mean the one force will be exerted in upward direction by the molecule. One is the force which is exerted by the weight of the liquid which is present above this molecule. So the difference between these two forces, that is called buoyancy. And ये molecule जो है ये इतना energy gain कर देता है कि ये against the gravity ऊपर आ जाए. ठीक है, तो यहां से जो एक मॉलिक्यूल है वो नीचे चला जाएगा उस स्पेस में.
So that is the natural convection, जो naturally हो रहा है, free convection इसको कहते हैं. And one is called the artificial convection or forced convection, which accomplished mechanically. Suppose अगर पंप्स के जरिए, ब्लोवर्स के जरिए, फैन के जरिए आप हॉट एयर जो है इंट्रोड्यूस्ड करते हैं, so that will be the artificial convection, that will be the forced convection. Okay, so the transfer of heat from one place to another, from hotter medium to colder medium, by the actual motion of heated particle, that is called convection. And convection must require a medium. Again, here the transfer of molecules are involved, so again a medium must be required for the convection. ठीक है. और जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि प्रीवियसली जो कंडक्शन हमने डिस्कस की, दैट द रेट ऑफ कंडक्शन इज इक्वल टू माइनस के एरिया डेल्टा टी डिवाइड बाय एल. ओके, या rate of heat conduction is equal to delta T divided by L divided by K और एरिया. अब देखिए ये तीन क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है या मीडियम की प्रॉपर्टी की, उसका लेंथ कितना है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, एंड हाउ मच इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट. सो ये तीन चीजें किसके साथ रिलेटेड है, ये मीडियम के साथ रिलेटेड है. दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, कि हीट कंडक्शन को कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मीन. कंडक्शन का अपोजिट क्या है, रेजिस्टेंस है. सी द रेट ऑफ हीट कंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी. तो अगर ये क्वांटिटी कम हो तो कंडक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ कंडक्शन ज्यादा होगा. अगर ये क्वांटिटी ज्यादा हो, so the rate of conduction will be less. So it means that this is the resistance which can be occurred into the conduction of heat in a medium. ठीक है. Similarly, convection जो होता है, convection में the resistance is offered due to the stagnant laminar layer. ठीक है. अक्सर क्या होता है कि इस लिक्विड के सरफेस पे एक स्टेगनेंट लेमिनर लेयर होता है, विच इज द इमूवेबल लेयर. समझ आ रहा है, विच इज द इमूवेबल एयर. सो देन द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी इवापोरेटेड, वो इससे ऊपर फिर नहीं जा सकता उस स्टेगनेंट लेयर से. मीन आगे उसके लिए अब ये रेजिस्टेंस है. सो द रेजिस्टेंस in convection is offered due to the stagnant laminar layer in an adjacent turbulent zone. Suppose अगर एक turbulent zone है किसी एरिया में, तो वहां से फिर पार्टिकल प्रॉपरली पास नहीं हो सकता. या अगर एक stagnant laminar layer है तो फिर वहां से कन्वेक्शन नहीं हो सकता. तो इसको अपने माइंड में रखिए कि the resistance which can be occurred to the convection, that is due to the stagnant laminar layer or due to the turbulent zone of fluid at the solid phase interface. Okay, suppose अगर या ये एक केटल है ना, तो ये उसका क्या है, सॉलिड पोर्शन है. यहां पे एक लेयर इस तरह होते हैं जो इमूवेबल लेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेगनेंट लेमिनर लेयर. ठीक है. और यहां से फिर लिक्विड होते हैं, उसमें मूवेबल पार्टिकल्स होते हैं. सो द सरफेस इन बिटवीन दिस सॉलिड एंड फ्लूइड इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड द स्टेगनेंट लेमिनर लेयर, which can offer the resistance to the convection. Now, the heat which will be transferred through convection, again, that is proportional to the difference in temperature between the surface and the main bulk of the fluid. See, ये is a bulk है, is a whole temperature है. Suppose that is T1 और उसके surface का temperature क्या है, suppose that is T2. So if the temperature difference is more, then the heat convected will be more. Okay, the heat rate is proportional to the temperature difference between the surface and the main bulk of the fluid, and also that is proportional to the surface area. We can say that the heat rate is directly proportional to the surface area. The heat rate is directly proportional to the temperature difference between the surface and the fluid bulk.
ठीक है। सो इनको अगर आप कंबाइन कर ले, सो द हीट रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड द फ्लूइड बल्क, ओके। एंड if you remove the sign of proportionality, then यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं which is called the surface conductance for convection। जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि सपोज if here we have a stagnant layer, so it will provide a type of resistance to the convection। so अब उसमें जो conduction हो रहे हैं, या that is also called the convective coefficient। जनरली आप इसको इस तरह कहते हैं कि सपोज अगर एक फ्लूइड की कन्वेक्टिव जो एबिलिटी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट। और अगर आप देखें तो गैसेस में कन्वेक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द लिक्विड। ठीक है, गैसियस में एज कंपेयर टू द लिक्विड और एज कंपेयर टू द सॉलिड, ये उसकी कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट्स होते हैं। गैसियस के मॉलिक्यूल जो है उसकी कन्वेक्शन ज्यादा होती है ना एज कंपेयर टू द लिक्विड। सो ये HC जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, A जो है दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, TS जो है दैट इज द सरफेस टेम्परेचर, TF जो है दैट इज द फ्लूइड टेम्परेचर। रिमेंबर टेम्परेचर्स का जो यूनिट है ये फ़ारेनहाइट में होगा, एरिया जो है ये स्क्वायर फीट में होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। HC जो है दैट इज द एबिलिटी ऑफ द कन्वेक्शन ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ BTU per square feet per hour for degree Fahrenheit। Suppose if the difference between the surface and the bulk temperature is 1 degree Fahrenheit, the surface area is 1 square feet, so then the amount of heat which will be convected in 1 hour, that will be called the convective coefficient। और यहाँ पे ये जो होगा that will be the heat rate which will be represented in term of BTU per hour। ठीक है, is it clear? क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया सर। अच्छा, so Q is the heat rate BTU per hour, A is cross sectional area, surface temperature, fluid temperature, and the heat transfer coefficient। Now the heat transfer coefficient again जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि जो conductivity है that is depend on the characteristics of the material। Similarly the coefficient of convection is depend on the properties of fluid, surface area, and the manner and velocity of fluid कि वो किस तरह flow हो रहा है। ठीक है, and suppose if there is the stagnant layer, if there is a resistive layer for the convection, then the coefficient of convection for that layer will be equal to, suppose अगर एक layer है ना, एक resistive layer है, उससे convection नहीं हो रहा, उससे फिर हीट किस तरह ट्रांसफर होगा? थ्रू कंडक्शन। समझ आ रहा है ना? सपोज अगर ये मीडियम है तो इस मीडियम से इनसाइड द फ्लूइड हीट किस तरह ट्रांसफर होगा? कंडक्शन से होगा ना। सो देन द कंडक्टिविटी डिवाइड बाय द थिकनेस ऑफ दैट रेजिस्टिव लेयर, then it is called the convective coefficient। ठीक है, mean the conductance of a layer, if there is we can say that if there is a resistive layer, then the conductance of that layer divided by its factitious thickness, its imaginary thickness, then it is called the convective coefficient। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी, सर अगर फ्लूइड के अंदर जो है वो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी और उससे जो हीट ट्रांसफर होगी, तो ये कन्वेक्शन नहीं होगी सर? सी सपोज अगर यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, सो सी कंटेनर की जो बाउंड्री वॉल है और यहाँ पे लिक्विड है, इनके दरमियान एक रेजिस्टिव लेयर होता है विच इज कॉल्ड द स्टेगनेंट लेमिनार लेयर। वो पार्टिकल की मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं। तो फिर इस लेयर से ऊपर हीट किस तरह ट्रांसफर होगा? दैट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन इन दैट इमेजिनरी लेयर, इन दैट fictitious लेयर। तो फिर उसको हम कन्वेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो उस लेयर का जो कंडक्टेंस है डिवाइड बाय उसका जो थिकनेस है, फिर ये कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन आ जाएगा। ठीक है,
Okay, sir. Thank you. अच्छा, and these are the different representative surface transfer coefficient. इस मतलब ये है कि सपोज अगर आपके पास एक रूम है तो इनसाइड द रूम से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है टू द वॉल, यहाँ पे कन्वेक्शन आएगा। फिर इनसाइड द वॉल जो हीट आउटसाइड हो रहा है और कंडक्शन होगा। फिर वॉल की सरफेस से आउटसाइड एयर में जो हीट ट्रांसफर है वो दोबारा कन्वेक्शन होगा। सो अब यहाँ पे 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है। सो द एक लिक्विड और सॉलिड सरफेस के दरमियान ये जो हीट है उसको फिर हम मीडियम की कंडक्टिविटी डिवाइड बाय दैट fictitious लेंथ, फिर वो कन्वेक्शन में आ जाए, वो कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन आ जाता है। अच्छा, जो थर्ड मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफर का, दैट इज द रेडिएशन। So as we know that radiation is the emission of energy without need of a conducting or convecting medium. Remember, to transfer the heat through conduction or convection, we must require a medium. And for radiation, no medium is required because the heat is transferred through electromagnetic waves. Okay? जिस तरह सन से जो एनर्जी आ रही है ना, तो बीच में तो कहीं पे एक मीडियम नहीं है। Again, the heat is transferring. So that transformation of heat energy, that is called the transformation through radiation. Okay. And as we know that every body radiates energy. See, suppose अगर यहां से आप इस तरह हीट गेन कर रहे हैं हीटर से, सो ये रेडिएशन से आता है बिकॉज कन्वेक्शन इस तरह होता है, कन्वेक्शन इस डायरेक्शन में होता है। यहां पे अगर साइड पे आपको एनर्जी मिल रही है, सो दैट इज ड्यू टू द radiation transformation. And again, the transfer of heat through radiation, again, that will be depend upon the area and the nature and the absolute temperature of the surface. Okay? We can say that the rate of heat is equal to area, and these two are some constant, and T is the temperature. C, Q is the heat transfer rate BTU per hour. और यहाँ पे ये जो इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, दैट इज द इमिसिविटी। अगेन मीन दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। जिस तरह हमारे पास कंडक्शन में कंडक्टिविटी होती है, कन्वेक्शन में कन्वेक्टिविटी होती है, सिमिलरली रेडिएशन में इमिसिविटी होती है। ठीक है। अगेन दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू वी कैन से दैट टू इमिट द पावर ऑफ द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड इमिसिविटी। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी की 0 है और शाइनिंग सरफेस की 1 है, तो नाउ दैट इज द रेंज ऑफ द इमिसिविटी। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है द सिग्मा, देखिए उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। एंड रिमेंबर यहाँ पे रेनकाइन यूज हो रहा है। ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था ना, टेम्परेचर स्केल। एंड एरिया दैट इज द सरफेस एरिया, कि एक मीडियम जो है कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है। ओके अगर एक एरिया, एक सरफेस है, एक बॉडी है, उसकी सरफेस एरिया ए है और उसकी एमिसिविटी पावर ये है, एंड उसकी जो सरफेस टेम्परेचर है सपोज दैट इज टी। ठीक है। तो कितना हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकता है उससे 1 आवर में, उसका हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा। एंड रिमेंबर इस इक्वेशन में ये जो टी है दैट इज इन रेनकाइन। ठीक है। और ये उसका कन्वर्जन है, अगर आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है तो इसके साथ 468 कर ले, सो यू विल गेट द टेम्परेचर इन रेनकाइन। नाउ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर प्लेस टू अ कूल्डर प्लेस विद और विदाउट अ मीडियम इज कॉल्ड द रेडिएशन। ठीक है। या एट अ टाइम एक मीडियम से कंडक्शन भी हो सकता है, कन्वेक्शन भी हो सकता है और रेडिएशन भी हो सकते हैं। ठीक है। तीनों मीडियम जो है वो एट अ टाइम उससे हीट ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ले रहे हैं सर। अच्छा, now specifically we are interested in the conduction because in the storage houses the heat is transferred from inside the environment through conduction. ठीक है। अगर आपके पास एक रूम है ना, तो उस रूम में अगर आउटसाइड से टेम्परेचर ज्यादा है तो इनसाइड से आउटसाइड टेम्परेचर किस तरह ट्रांसफर होगा? थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है। तो जिस तरह हमने डिस्कस की we have different mediums, yeah, we have different substances,
and then that substances will have different characteristics. It will have different ability to conduct the heat from one point to another point, which is called the thermal conductivity. And see, for most pure metals, the conductivity decreases with the increase in temperature. जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस की ना कि कंडक्टिविटी जो होता है that can be affected by temperature. अगर किसी में एक मटेरियल है, उसकी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी हीट कंडक्शन की एबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी. ठीक है. सिमिलरली जिस तरह हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं ना, इंसुलेटर की टेम्परेचर राइज की वजह से उसकी करंट कंडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है. Similarly, for the pure metals, the conductivity will be decreased with increase in temperature. The conductivity of alloys, see, alloys are made from different constituents. ठीक है. सपोज अगर आपके पास स्टील और आयरन की एक एलॉय है, तो सपोज अगर आयरन की कंडक्टिविटी K1 है और स्टील की कंडक्टिविटी K2 है, इससे अगर आप एलॉय बनाएं तो एलॉय की जो कंडक्टिविटी होगी, एलॉय की जो कंडक्टिविटी होगी, दैट विल बी लेस देन द कंडक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स. सिमिलरली द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर जो होता है वो टेम्परेचर राइज की वजह से इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. द कंडक्टिविटी is linear with temperature is usually true for fairly wide ranges. See, suppose अगर आपके पास एक मीडियम है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी. मीन अगर प्योर मेटल है ना, जिस तरह हमने डिस्कस की. ठीक है. सो अगर रेट ऑफ डिक्रीज इन कंडक्टिविटी जो है, इफ दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो देन वी विल से दैट जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है. या इसका मतलब ये भी है कि जितना हीट ये गेन कर रहा है उतना हीट वो लॉस कर रहा है. ठीक है. इसको फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं. एंड दीज आर द डिफरेंट कंडक्टिविटीज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड फॉर डिफरेंट मटेरियल. नाउ सी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन. अभी तक हमने जो डिस्कस की ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था या कंसेप्ट था हीट ट्रांसफर का. नाउ वी आर इंटरेस्टेड दैट हाउ कंडक्शन अकर इन प्लेन वॉल. अगर आपके पास एक वॉल है, कंक्रीट का वॉल है, ब्रिक वॉल है, ठीक है, या आपने वैसे कार्डबोर्ड लगाए हुए हैं, तो इफ देयर इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एनवायरनमेंट एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट, सो हाउ द टेम्परेचर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम इनसाइड इनटू आउटसाइड. ठीक है. सो सी, सपोज ये वॉल है. ठीक है. वॉल का एक सेक्शन है उसका, एंड डेल्टा एक्स दैट इज द थिकनेस ऑफ द वॉल. डेल्टा एक्स क्या है? वॉल का थिकनेस है. ठीक है. सी, टेम्परेचर जो आउटसाइड मूव होगा, दैट विल बी, या हीट जो मूव होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वॉल. और वॉल का जो थिकनेस है उस थिकनेस से हीट बाहर जाएगा. सो दैट इज डेल्टा एक्स, या दैट इज एल विच वी हैव यूज्ड इन द प्रीवियस इक्वेशन की मीडियम का थिकनेस कितना है, ये मीडियम का सरफेस एरिया है. सपोज दिस मच एरिया इज एक्सपोज्ड इनटू द इनसाइड टेम्परेचर T1, आउटसाइड टेम्परेचर T2 है. सपोज T2 इज लेस देन T1. अगर इनसाइड टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ कंडक्ट होगा. Suppose the length of the wall is delta x and the characteristic of this wall, that is the conductivity of the material, that is K. Okay, हर अगर एक wall है वो किसी material से बना होगा, उसकी ability होगी conductance की, so suppose that is K. Inside temperature is T1, outside temperature is T2, thickness of the medium is L. Now when the boundary temperature have been constant long enough that the temperature within the system is decreased. See, मतलब ये है कि सपोज अगर इनसाइड, या जितना हीट वॉल को एंटर हो रहा है और जितना हीट वॉल से आउट हो रहा है, सपोज द हीट which is entered into the wall, suppose that is equal to the heat which is आउट गोइंग फ्रॉम द वॉल. आउट सरफेस से जो हीट आउट जा रहा है ना,
और जो हीट वॉल को एंटर हो रहा है, अगर ये दोनों सेम हो, दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट कंडक्टेंस, स्टेडी स्टेट कंडक्टेंस. नाउ देखिए, in steady state condition the rate of heat transfer through a wall must be constant. mean अगर inside environment से जितना एनर्जी वॉल को एंटर हो रहा है, वही एनर्जी या same amount of energy is outgoing from the wall. So the Q in into the medium is equal to Q out from the medium. ठीक है. So when the boundary temperature is constant, बाउंड्री टेम्परेचर जो है इस वॉल की जो टेम्परेचर है, मीन अगर ये बाउंड्री टेम्परेचर T1 हो, ये बाउंड्री टेम्परेचर T2 हो, यहां T1 ग्रेटर है T2 से, तो जितना हीट एंटर हो रहा है उतना हीट आउट होगा, बाउंड्री टेम्परेचर पे चेंज नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट कंडक्शन. ठीक है. सपोज हमारे पास अगर एक प्लेन वॉल है, नॉर्मली अगर आप रूम में बैठे हुए हैं, आप वॉल्स को देखें तो हीट आउट जो ट्रांसफर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वॉल. और सपोज उस वॉल का जो लेंथ है और उसका जो हाइट है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इट विल गिव यू द एरिया, द सरफेस एरिया. सो थ्रू दिस एरिया द हीट विल कंडक्ट फ्रॉम इनसाइड इनटू द आउटसाइड. ठीक है. एंड दैट रेट ऑफ कंडक्शन विल बी इक्वल टू the conductivity of the medium, the surface area, and the change in temperature. Okay, that is, we can say that T1 minus T2 divided by thickness of that medium, उस medium का जो thickness है. ठीक है. Fourier's law को हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे. सो इस वॉल से कितना हीट बाहर जाएगा पर हावर में, तो आप फाइंड कर सकते हैं अब ना कि वॉल का थिकनेस कितना है, इनसाइड टेम्परेचर क्या है, outside temperature क्या है, what is the conductivity of the material, so how much heat can be transferred from inside into outside in 1 hour. ठीक है. अच्छा, अब देखें एक एग्जांपल है. सपोज वी हैव अ वॉल, इस तरह अगर एक वॉल है एंड दैट इज मेड फ्रॉम कॉर्क. ठीक है. अगर जिस तरह पार्टीशन करते हैं ना, अक्सर दो रूम्स के दरमियान अगर आप पार्टीशन करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जस्ट एक हार्डबोर्ड्स वाले जो है कॉर्क वॉल्स लगाते हैं. ठीक है. नाउ सपोज द वॉल इज द लेंथ ऑफ द वॉल इज 16 feet and the height of the wall is 9 feet. So the surface area which is exposed to the conduction of heat, that is equal to 9 multiplied by 16. 9 multiplied by 16. So 144 square feet उसका एरिया होगा. The temperature of the two surfaces, suppose inside temperature जो है that is 31 degree C, या अगर cold storage है तो inside temperature कम होगा, suppose that is 3 degree C, outside temperature 31 degree C है. So temperature difference जो है that is 28 degree Fahrenheit. ठीक है. और जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, दैट इज मेड फ्रॉम द कॉर्क, सो फ्रॉम टेबल यू कैन टेक इट्स कंडक्टिविटी, दैट द कंडक्टिविटी ऑफ द कॉर्क इज 0.025. नाउ हाउ मच हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन 1 hour, सो दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम multiplied by cross sectional area multiplied by the temperature difference and divide by the thickness of the medium. So thickness of the medium is, उसका thickness कितना है, 4 inch है. इसको फीट में कन्वर्ट कर लेना. 4 इंच अगर आप फीट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास 1/3 feet आ जाएगा. So from this you can calculate कि पर आवर में इतना हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकता है. अब देखें क्वेश्चन क्या है यहां पे ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, सपोज मीन आपका एक रूम है ना, एक रूम है, ये कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, एक स्टोरेज हाउस है. स्टोरेज हाउस में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं ना.
तो सपोज अगर इनसाइड आपने कितना टेम्परेचर रखना है 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, आउटसाइड टेम्परेचर क्या है 31 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हमने ये डिटरमाइन कर दिया कि 1 हावर में बाहर से इनसाइड कितना हीट आ रहा है 302 BTU, 302 BTU heat is coming from outside into the inside environment. Now inside तो आपने एक मेंटेन टेम्परेचर रखना है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। तो अब ये जो यूज होता है ना, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम की डिजाइनिंग में यूज होता है कि अगर आप if you have to maintain the 3 degree Fahrenheit temperature inside the environment, तो जितना हीट इनसाइड आ रहा है उतना हीट आपने आउट करना होगा। सो नेचुरली 302 BTU heat is coming into the environment from outside. Now you have to design such a refrigeration system कि वो 302 हीट जो है वो 1 घंटे में सिस्टम से आउट कर सके। तो जितना हीट इंटर हो रहा है उतना हीट आउट हो रहा है, तो इनसाइड का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। So this is the concept which is used for the designing of the storage houses, in which actually we are designing that how much heat energy is required to be taken out from the system to keep the inside temperature constant. तो जितना टेम्परेचर नेचुरली इनसाइड आ रहा है ना, मैकेनिकली आपने उतना टेम्परेचर वहां से आउट करना होगा, जिसके लिए आपने डिजाइनिंग करनी होगी। क्लियर हो गया थोड़ा सा? यस सर। अच्छा, अब सपोज कंटिन्यू कर लें या काफी है? सर काफी बस है आज काफी के है। लिए। काफी है। यस सर। यस सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि सपोज अब अगर आपके पास कंपोजिट वॉल हो, सी इनसाइड अगर प्लास्टर है, बीच में ब्रिक है, फिर आउटसाइड प्लास्टर है, तो एक कंपोजिट वॉल होगा ना, तो उससे किस तरह हीट ट्रांसफर होता है, उसकी क्वांटिफिकेशन किस तरह करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अगेन आप लोग जो उसको फिर रिवाइज भी कर लें, इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंडक्शन का, कन्वेक्शन का, वो फिर नेक्स्ट क्लास में यूज होगा, तो आप उसको रिवाइज कर लें स्टिल